Okay, so standard forms of the parabola. Okay, so till now we have understood only one standard equation or standard form of the parabola, that is y square equal to 4ax. Guys, believe me, 80 to 90% of your questions on parabola will be based on standard form, but there are some other standard forms as well which you should know. Okay, so in this section we'll discuss that. First, let's discuss about our standard form, that is y square equal to 4x. This is the first standard form which we have discussed in pretty much detail, है ना? अभी तक हम इसी से डिस्कस कर रहे थे. So for this, the parabola will be opening rightwards. Okay, this is opening rightwards. All right, the axis of the parabola will be the x-axis, vertex will be 0, 0, focus will be a, 0, directrix will be x equal to minus a. Okay, so all these information you can see, axis y equal to 0, or you can say x-axis, right? X-axis. वर्टेक्स बेटा इट्स 0, 0, फोकस इज a, 0, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा बेटा x इक्वल टू माइनस a. ठीक है, x इक्वल टू माइनस a, डायरेक्ट्रिक्स फोकल डिस्टेंस. सो कोई भी एक अगर पॉइंट लिया है आपने x, y, ओके, सो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस विल बी x and this distance is a. तो ये हमने डिस्कस किया था that focal distance is same as its distance, perpendicular distance from the directrix, because that is the equation of parabola. तो ये आ जाता है x plus a, और end point of latus rectum क्या होता है a, 2a and a, minus 2a. One more thing you can write over here, that is length of latus rectum. ठीक है, length of latus rectum, that is directly equal to 4a, guys. Okay, so from your standard equation of parabola, that is y square equal to 4ax, all these important terminologies you can remember. You have to remember this, okay? And where in the graph actually you will plot this, that also you have to keep in your mind. Guys, the second type of standard parabola, that is y square equal to minus 4ax. तो आप बोलोगे सर ये माइनस से क्या है, तो पहले हमने जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिया था गाइज, वहां पे a पॉजिटिव था. ओके, हियर यू कैन राइट दैट दिस वी आर डिस्कसिंग फॉर द केस वेयर a इज पॉजिटिव, है ना. लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax आ गया, दैट मीन्स कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया. दैट इज द ओनली डिफरेंस, है ना. जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 16x की जगह अगर y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16x आया तो क्या होगा बेटा, तो हमारा पैराबोला ओपनिंग लेफ्ट साइड हो जाएगा. इट विल बी ओपनिंग लेफ्टवर्ड, समथिंग लाइक दिस. ओके, so you have to remember that if the coefficient of x, y square equal to 4ax, if the coefficient of x becomes something like this, then parabola will become opening rightwards. All right, and all the other things will be relatively same, like the focus. Here the focus will be minus a, 0. अब directrix क्या हो जाएगा, x equal to a, because it will be on the right side of the origin, right? So it will be x equal to a. Length of latus rectum will be same, that is 4a. It will be not minus 4a, because you are talking about length. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, लेंथ फाइंड कर रहे हैं, तो वो 4a ही होगा. एंड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे लेटस रेक्टम के, तो माइनस a, 2a एंड माइनस a, minus 2a. So see, if you have all these points in your mind now, that what is the meaning of latus rectum, what is focus and all, what is directrix, तो ये informations आपके लिए calculate करना बहुत easy. You just have to remember basically what is happening is you can understand this parabola as 4a into y square equal to 4a into minus x. So the x coordinates which were positive back then, now they are negative. Okay, तो देखो यहां पर माइनस से आ गया x कोऑर्डिनेट में, यहां भी माइनस से आ गया, यहां भी माइनस से आ गया. ऑलराइट, सो यू कैन जस्ट रिमेंबर इट लाइक दिस. एक्सिस विल बी सेम, दैट इज योर y axis, because graph is, you can clearly see symmetric about the x axis only. So y equal to 0 is your axis. Vertex will be also same, 0, 0. It is passing through 0, 0. Alright, focus will change, directrix will change, end points will change. Okay, so if you see what all things are changing, focus is changing, equation of directrix is changing, endpoints of latus rectum is changing, but length of latus rectum is same, that will be 4a beta only, right? The distance between focus and directrix, that is also 2a. So guys, this is a general observation. Can you see that all the coordinates and equations are changing, but
the distances are not changing, okay, and distances will not change because you have just made it negative. X coordinate, first it was positive x, now it is negative x, all right. So only the distances, only the coordinates and you can say equations will change because difference आया है, but length जो है, distances जो हैं वो तो सेम ही रहेंगे. तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सेम रहने वाली है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस सेम होने वाला है. तो ये सारे प्रॉपर्टीज, टर्मिनोलॉजीज विल रिमेन सेम. Okay, so let me give you again in a tabular form. It will be easy for you to remember. So axis for this parabola is again y equal to 0. That is your x axis बेटा, है ना. वर्टेक्स अभी भी 0,0 है. फोकस -a,0 होगा. ठीक है, तो जब भी x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, आपका फोकस नेगेटिव पे आ जाएगा, नेगेटिव x एक्सिस पे. डायरेक्ट्रिक्स फिर पॉजिटिव पे जाएगा, है ना, ऑब्वियसली क्योंकि अपोजिट उसमें होते हैं. तो डायरेक्ट्रिक्स अब x इक्वल टू a है. फोकल डिस्टेंस क्या होगा? हाँ, फोकल डिस्टेंस क्या होगा? कोई भी पॉइंट अगर x, y यहां पर है ना, तो आप क्या बोलोगे सर फिर से a प्लस एक्स. तो ठीक है, a तो देखो पॉजिटिव ही है, लेकिन यहां x इज नेगेटिव बिकॉज इट विल बी -3 -2 समथिंग काइंड ऑफ दैट ना. तो ये डिस्टेंस को आप mod x बोल सकते हो बहुत इजीली, है ना. तो उसको आप a प्लस mod x इस तरह से रिमेंबर करो, या फिर a माइनस एक्स. ये थोड़ा सा मैं प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे कि प्लस एक्स से माइनस एक्स क्यों आ रहा है. सी लॉजिकली इट इज करेक्ट क्योंकि x कोऑर्डिनेट ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव वो a प्लस एक्स ही बनेगा. बट आप उसको डिस्टेंस के टर्म्स में ऐसे याद रखो कि अच्छा ये डिस्टेंस mod x होगा बिकॉज x इज नेगेटिव. तो डिस्टेंस तो mod x और a पॉजिटिव है ही, तो a प्लस mod x हमारा फोकल डिस्टेंस हो गया. एंड पॉइंट्स -a,2a और -a,-2a. अगेन यहां पर जो चीज सेम होगी दैट विल बी द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. वो फिर से कितनी होगी बेटा? 4a. ओके, सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला जिसमें हमने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इट इज y स्क्वायर इक्वल टू -4ax. ठीक है, तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर x कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होंगे तो हमारा बेसिकली इस तरह से पैराबोला आ जाएगा. ठीक है, तो ये बेटा आपके दो पैराबोला हुए विच आर सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस. ठीक है, ये क्या है? सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस. अच्छा, ये सिमेट्रिक अबाउट y x एक्सिस कैसे हैं? तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि देखो y की पावर अगर इवन है तो फिर सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होंगे. करस्पॉन्डिंग टू अ सिंगल वैल्यू ऑफ x यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ y, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट जब लोगे तो प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं. जैसे कि अगर ये यहां पे मैंने माइनस से पुट किया x, तो y की वैल्यू एक बार 2a आएगी, एक बार -2a. इसीलिए हमेशा सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा x एक्सिस के. लेकिन अगर मुझे एक पैराबोला मिल गया जहां पर x² इक्वल टू 4ay आ गया, x की पावर को इवन कर दिया, तो करस्पॉन्डिंग टू एवरी वैल्यू ऑफ y यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ x. तो वो पैराबोलास क्या होंगे बेटा? दे विल बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस एंड दैट इज योर नेक्स्ट स्टैंडर्ड पैराबोला, दैट इज x² बराबर 4ay. Okay, so x square equal to 4ay. If we have this parabola, can you see? If you put one value of, let's suppose any value of y, x की दो वैल्यूज आएंगी ना, रूट लोगे तो प्लस माइनस, है ना. तो करस्पॉन्डिंग टू एवरी वैल्यू ऑफ y you will get two values of x. So that's why these parabola x² equal to 4ay, ये हमारा क्या होगा? It will be symmetric about your y axis. ठीक है, x इक्वल टू 0 जिसे हम बोल रहे हैं, y एक्सिस के अबाउट हमारा पैराबोला क्या होगा? सिमेट्रिक होगा. और इसीलिए हम क्या बोलेंगे? दैट एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला, इस पैराबोला के लिए एक्सिस क्या होगा बेटा? इस पैराबोला का जो एक्सिस होगा दैट विल बी x इक्वल टू 0 और यू कैन से y एक्सिस. ठीक है, सो x² इक्वल टू 4ay विल बी अ पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस एंड ओपनिंग अपवर्ड. ओपनिंग अपवर्ड का सिंपल मीनिंग ये है, देख लो यार, कि अगर y को इंफिनिटी पुट करोगे, y को अगर इंफिनिटी पुट करोगे तो x प्लस माइनस इंफिनिटी, तो इस तरह से ओपनिंग अपवर्ड जाएगा ये. ठीक है, ओपनिंग यहां पर अपवर्ड होगा. आपकी y की वैल्यू यू कैन ओनली पुट बेसिकली पॉजिटिव वैल्यूज ओवर हियर, नेगेटिव नहीं पुट कर सकते हम क्योंकि x² नेगेटिव अगर पुट कर दिया, अगेन आई एम अज्यूमिंग a एज पॉजिटिव इन दिस केस. ठीक है, a को हमने पॉजिटिव लिया. ठीक है बेटा, सो x² इक्वल टू 4ay पैराबोला विल बी ओपनिंग अपवर्ड सिमेट्रिक अबाउट y axis. Now for this parabola guys, if we try to understand what will be the focus and what will be the directrix and all the other information,
सो वेरी सिमिलरली तो हमने सिंपली क्या किया है, आप इस पैराबोला को ये समझ सकते हैं दैट इन प्लेस ऑफ x our standard equation of parabola was y square equal to 4ax. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं I have just interchanged x and y, x और y को मैंने क्या किया है, इंटरचेंज किया है, तो मुझे ये इक्वेशन मिल गई। तो यहां पर हम कोऑर्डिनेट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। पहले कोऑर्डिनेट फोकस का था a,0, अब वो देखो क्या बन गया है 0,a, राइट। पहले इक्वेशन थी x इक्वल टू माइनस ए, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, अब क्या है y इक्वल टू माइनस ए। So you have just interchanged the x and y coordinates over here. That's how you can understand it. All right. And see, directrix and focus if you have, then all the other things you can find very easily. Okay. Now, what will be the vertex? So this is your parabola and this is my axis. They are intersecting at a point 0,0. So this is nothing but it's my vertex. Okay. Latus rectum क्या होता था? It's a chord passing through focus and perpendicular to axis. तो ये हमारी लेटस रेक्टम होगा बेटा। तो सो यू कैन क्लियरली सी इट इज पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस, सो दैट मींस द वाई कोऑर्डिनेट ऑन दिस लाइन विल नॉट चेंज। लेटस रेक्टम पे हर जगह वाई कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, ए होने वाला है। तो आप अगर वाई कोऑर्डिनेट ए पुट करोगे, सो अगेन यू विल गेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू ए, दैट इज 4a स्क्वायर। सो एक्स कोऑर्डिनेट विल कम प्लस माइनस 2a, सो दिस इज माइनस 2 एंड दिस इज प्लस 2, राइट। सो अगेन इफ यू फाइंड द लेंथ of latus rectum, that will again come equal to 4a. तो length of latus rectum हमेशा कितना होगा, 4a के ही इक्वल होगा। Like I am talking about the standard equation y square equal to 4ax and x square equal to 4ay. तो हमेशा लेंथ कितना है बेटा, 4a ही है ना। लेकिन x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इनमें फोकस के कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चेंज होती है, ठीक है। तो आप ये फिगर माइंड में रखिए, है ना। कई बार बच्चे बस ये इक्वेशन देख के भी a,0, अरे नहीं भाई, ये पैराबोला ऐसा बन रहा है तो a,0 कहां फोकस आएगा, इट शुड बी 0, और आप इंटरचेंज वाला पार्ट याद रखो, पहले a,0 था, अब x और y इंटरचेंज तो 0,a हो गया। x इक्वल टू माइनस ए डायरेक्ट्रिक्स था, अब इंटरचेंज कर दिया तो x की जगह y इक्वल टू माइनस ए आ गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ गाइज यू कैन रिमेंबर इट। लेट मी शो यू इन अ टेबुलर फॉर्म, बहुत इजी से याद रहेगा। एक्सिस क्या होगा, x इक्वल टू 0, या फिर जिसे हम बोलते हैं y एक्सिस। वर्टेक्स क्या होगा बेटा, अगेन 0,0, फोकस इज 0,a नाउ, डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल टू माइनस ए, फोकल डिस्टेंस, तो सिमिलर लॉजिक है यार, एग्जैक्टली सिमिलर लॉजिक। ये कोई भी पॉइंट लिया आपने x, y, तो फोकस से इसका डिस्टेंस इक्वल होगा डायरेक्ट्रिक्स के इससे डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितना है, a है, ये y इक्वल टू माइनस ए लाइन है, सो फ्रॉम ओरिजिन इट्स डिस्टेंस विल बी a एंड दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट, this will be y, so y plus a will be the focus distance. End points I have already shown you, it will be 2a comma a and minus 2a comma a. See, if you just remember ना कि अच्छा y square equal to 4ax के लिए सर a comma 2a और a comma minus 2a होते हैं एंड पॉइंट, और x square equal to 4ay के लिए 2a comma a और minus 2a comma a, यार कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं याद रखना है। क्यों याद नहीं रखना है, बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ टर्मिनोलॉजीज, इसीलिए मैंने आपको डेफिनेशन से और अच्छे से समझाया कि आप टर्मिनोलॉजीज को याद रखिए, तो बहुत इजी है ये सब निकालना, तो है ना। सिर्फ फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आपको याद रखने हैं और वो बहुत इजी है टू रिमेंबर। फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जस्ट रिमेंबर एवरीथिंग बिकॉज इट्स वेरी यूजफुल एंड एवरी टाइम विल मैक्सिमम टाइम्स विल हैव क्वेश्चन ऑन इट, तो उसके लिए याद रखिए कि a कॉमा माइनस 2 है। यहां पे अगर कुछ कंफ्यूजन हुआ भी तो यार हमें पता है ना कि फोकस से पास होता है सर लेटस रेक्टम, पैरेलल परपेंडिकुलर होता है एक्सिस के, इसका मतलब इस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहने वाला है, a ही रहने वाला है। तो y कोऑर्डिनेट a पुट करके x कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं माइनस 2a और 2a, तो मैं क्यों कंफ्यूज हूं बेवजह, है ना। या फिर यहाँ पे भी वही लॉजिक यूज कर लो आप कि बस क्या करा है, इंटरचेंज ही तो करा है, पहले a कॉमा माइनस 2a और a कॉमा 2a आता था, अब 2a कॉमा a और माइनस 2a कॉमा a हो गया, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर एवरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्मिनोलॉजीज. So this was your endpoints of latus rectum, and the last one is length of LR. So beta length of latus rectum, again nothing will be changed, it will be 4a only because the coefficient we have taken 4a again, ठीक है। और उसके बाद guys last standard formula, so there are 4 standard form. So last one is if you again like here also a is positive, लेकिन अगर आप coefficient को negative कर दिया
तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो आप y की वैल्यू हमें नेगेटिव पुट करनी होगी, तभी एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, तो अगर एक माइनस ऑलरेडी है तो y नेगेटिव होना चाहिए, दैट्स व्हाई वी विल गेट अ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, दैट इज बिलो ओरिजिन. सो अगेन द एक्सिस इज सेम, दैट इज योर x इक्वल टू 0. अब फिर से चेंजेस होंगे, फिर से क्या होंगे, चेंजेस होंगे. फोकस अब नीचे आएगा तो 0, a की जगह 0, -a हो जाएगा. डायरेक्ट्रिक्स अब ऊपर चला गया तो y इक्वल टू a हो जाएगा. ओके, अगेन इफ इट इज 0, -a, y कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज ऑन डायरेक्ट्रिक्स ऑन लेटेस्ट रेक्टम, तो y -a पुट करने पे आपको x कोऑर्डिनेट्स फिर से क्या मिल गए, -2a और 2a. तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहां भी 4a है बट कोऑर्डिनेट्स आर इंटरचेंज. ओके, सो if you have this kind of parabola x square equal to -4ay, then the terminologies will again change. Axis will remain same, vertex will remain same. Focus बेटा 0, -a होगा क्योंकि पैराबोला नीचे बन रहा है, और डायरेक्ट्रिक्स अब ऊपर आ जाएगी तो y इक्वल टू a हो जाएगी. अब फोकल डिस्टेंस, तो अगेन देखो यार, फोकल डिस्टेंस कोई भी अगर पॉइंट है x, y, so here y coordinate will be negative, so if you find its distance this will be a, right? But this distance, if you want distance, you can write it as mod y, so it will be a plus mod y, and end point of lotus rectum will be 2a, -a and -2a, a. Length again, length of LR that will be again equal to 4a. ठीक है, लेंथ जो होगा हमारा लेटस रेक्टम का वो फिर से कितना आ जाएगा बेटा, 4a आ जाएगा. ठीक है, okay beta, now let's solve some basic questions so that you can understand all the different standard forms of the parabola. ठीक है, कैसे हम फोकस फाइंड करेंगे, क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम क्या होगा, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है, चलो ये पहला क्वेश्चन आ गया. जैसे फॉर द फॉलोइंग पैराबोला, तो पैराबोला क्या दिया है बेटा, 2y स्क्वायर इक्वल टू -16x. 2y स्क्वायर इक्वल टू -16x को क्या बेटा मैं लिख सकता हूं, y स्क्वायर इक्वल टू -8x. यस और नो, है ना. इसको हम क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू -8x. 2 से डिवाइड कर दिया यार, स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है क्या. अब मुझे बताओ ये किस टाइप का पैराबोला होगा, तो क्या आपको दिख रहा है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax. दैट मीन्स सर दिस पैराबोला विल बी सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस बट ओपनिंग डाउनवर्ड. ओके, और ये हमारा पैराबोला आ जाएगा. यस और नो, है ना, क्योंकि यहां पर क्या दिख रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू -4x का फॉर्म है ये, तो इस तरह से हमारा पैराबोला होगा. ठीक है, अब पहली चीज हमें बताना है एक्सिस बेटा. तो एक्सिस यू कैन क्लियरली सी दैट एक्सिस विल बी व्हाट, दिस x एक्सिस इज द एक्सिस, है ना, ये x एक्सिस ही तो एक्सिस है. तो एक्सिस की इक्वेशन बेटा आप क्या लिखोगे, x एक्सिस दैट इज y इक्वल टू 0. इट्स इक्वेशन विल बी y इक्वल टू 0. ऑलराइट, फिर सेकंड हमें फाइंड करना है व्हाट विल बी द फोकाई. ओके, तो अगर इफ यू कंपेयर इट विथ योर बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, तो क्या आपको दिख रहा है 4a इज कमिंग इक्वल टू 8 विच इंप्लाइज a विल बी इक्वल टू 2. तो a का वैल्यू अगर 2 है, सो वी नो द फोकस विल बी समवेयर ओवर हियर, सो इट कांट बी a, 0. 2, 0 तो आप वैसे भी नहीं लिख सकते ना, लॉजिकली भी गलत है. इफ यू आर राइटिंग अ पॉइंट ऑन द नेगेटिव x एक्सिस, सो इट हैज टू बी -a, 0, राइट. -a, 0 होता है ना y स्क्वायर इक्वल टू -4x के लिए, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, -2, 0. So -2, 0 is the foci. What about the directrix, sir? What will be the directrix? So directrix, it's a line which is something like this, right? For a parabola y square equal to -4ax, it will be what? You can clearly see it's parallel to your y axis, so its equation will be x equal to a, and a is equal to 2 over here, so that's why you can say the directrix will be x equal to 2. ठीक है, तो x equal to 2 बेटा आपका डायरेक्ट्रिक्स आ गया. What will be the focal distance? अब देखो focal distance अगर आपको फाइंड करना है तो यहां पर कोई पॉइंट गिवन होना चाहिए था. लेट्स सपोज आई एम जस्ट टेकिंग अ वेरिएबल पॉइंट, तो अगर मैं x, y कोई भी वेरिएबल पॉइंट लूंगा तो focal distance will be same as its distance from the directrix. So this distance will be what बेटा, mod x. I have told you नेगेटिव होगा तो सिर्फ x मत लिखना, और ये डिस्टेंस है, or basically this is x equal to 0 and this is x equal to 2, so this distance will be 2. So focal distance you can say it will be mod x plus 2.
फॉर अ जनरल पॉइंट। अब ये x, y आप कुछ भी पुट कीजिए, आपको फोकल डिस्टेंस डिफरेंट x के लिए मिलेगा। और लास्ट में पूछ लिया गया है एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। अब एंड पॉइंट कैसे निकालें? तो हमें पता है सर, लेटस रेक्टम इज अ कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। इसका मतलब वन थिंग इज क्वाइट श्योर दैट फॉर द एंड पॉइंट्स P एंड Q द x कोऑर्डिनेट विल बी -2। x कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2 होगा, दैट इज -a, है ना, -a। और अगर आपको याद है तो आप बहुत इजीली लिख सकते हो कि P, if you are assuming this point as P and this point as Q, so its y coordinate should be positive, so the coordinates of latus rectum are -a, 2a, so 2 into 2 that will be 4, and a, basically -a, -2a, that will be -4. So these will be your end points of the latus rectum. या फिर अगर बेटा आपको नहीं याद है कि यार -a के साथ 2a -2a क्या है, तो यार -2 पुट कर दो इक्वेशन में। यहाँ पे सिंपली -2 आप पुट करो, y स्क्वायर इक्वल टू 16 आ रहा है तो y इक्वल टू +-4 आ जाएगा। तो एक पॉइंट हो गया -2,4, एक पॉइंट हो गया -2,4। सो कैन यू सी वेरी इजीली इफ यू जस्ट ड्रॉ योर पैराबोला, सारे पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे, है ना। तो आई विल strongly suggest you to draw rough sketch every time for a coordinate geometry। वो सर्कल हो, वो एलिप्स हो, वो हाइपरबोला हो, वो पैराबोला हो, भले ही वो स्ट्रेट लाइन हो, एक बार ड्रॉ कर लो यार। 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, बट क्वेश्चन सॉल्व करने में स्पीड बहुत आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, for the following parabola, so now the parabola is x square equal to 6y, very good। अब पैराबोला चेंज हो गया। अब पैराबोला क्या आ गया? स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है ये? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, है ना। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला कैसा होता है बेटा? इट्स अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, बिकॉज कोफिशिएंट इज पॉजिटिव ना, सो ओपनिंग अपवर्ड एंड it will be something like this, right? Symmetric about y axis, not the x axis now. So x square equal to 6y, or you can say 4ay looks something like this. So here if we find the x's, you can clearly see first of all that it is x equal to 0, because it is the y axis, है ना। y axis क्या about ये पैराबोला सिमेट्रिक है हमारा, तो y axis यहाँ पर क्या होगा? बहुत अच्छे से हमारा, आप कह सकते हो that will be your axis। Now the second point, what will be the foci? So guys, if you compare this with your standard form, that is x square equal to 4ay, on comparison you can clearly see 4a is coming equal to 6, or you can say a is coming equal to 3/2. Okay, so if a is 3/2, what will be the focus? a, 0। यार a, 0 तो लॉजिकली भी गलत होगा। अगर ये गलती आप कर भी देते हो तो देखो ना यार, पॉइंट आपको पता है फोकस यहां कहीं होगा, दैट इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पे तो x कोऑर्डिनेट 0 ही होना है, इसका मतलब 0, a ही फोकस हो सकता है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? s विल बी 0, 3/2। ओके, what about directrix? So we know directrix will be a line something like this. If parabola is opening upward, the directrix has to be somewhere over here, right? And it's a line, obviously you can see parallel to your x axis। तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू कांस्टेंट, और y इक्वल टू क्या होती है? -a होगी ना बेटा, राइट। y इक्वल टू -a लॉजिकली भी दिख रहा है कि नेगेटिव ही होना चाहिए y कोऑर्डिनेट, और हमें पता है कि a तो यूज होना ही है। देखो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स माइंड में होना चाहिए, तो बस y इक्वल टू -3/2 हमने क्या लिख दी? लाइन की इक्वेशन लिख दी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन -3/2। What will be the focal distance? So again guys, focal distance you can find for a general point only, okay? तो यहाँ पर कोई पॉइंट अगर x, y लिया है तो ये डिस्टेंस देखो हो जाएगा y, और ये डिस्टेंस आपको पता है कितना है? a के इक्वल, दैट इज 3/2 the distance, right? So the distance, focal distance for any point will be y plus 3/2 simply. Okay, just put different values of y, you will get focal distance of different points. And in the last guys, you have to find the endpoints of latus rectum. So we know that latus rectum is a chord passing through focus and perpendicular to the axis. So if you remember directly, then it's very easy. First of all, you can say that directly one thing, that obviously because the line is latus rectum is parallel to my x, तो y कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर सेम ही होने वाले हैं, मतलब y कोऑर्डिनेट तो इसका भी 3/2 होगा और इसका भी 3/2 होगा। देखो लॉजिकली जो चीज आपको समझ में आ रही है ना, वो आपको पहले लिखनी चाहिए,
ठीक है, तो ये a तो हमने डायरेक्टली लिख दिया कि y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। अब हमें पता है कि यार x कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, प्लस माइनस का डिफरेंस होगा, तो हमें पता है ना, इफ दिस इज a, 3/2 इज a, तो -2a और 2a ही तो होता था, तो ऑब्वियसली p इज ऑन द नेगेटिव साइड, तो ये हो जाएगा -2a, तो -2a विल बी -3, 2 into 3/2, और ये हो जाएगा सिंपली 2a, दैट विल बी 3. सो एंड पॉइंट ऑफ द लेटस रेक्टम विल बी -3, 3/2 and 3,3/2. You can find it out also very easily because you have already find out that the y coordinate 3/2 ही होना चाहिए, because it is parallel, basically the latus rectum is perpendicular to the axis. इसका मतलब latus rectum parallel to y axis होगी और y coordinate इस पे same है, तो y square equal to, sorry, the equation is x square equal to, इक्वेशन क्या है बेटा हमारा, x स्क्वायर इक्वल टू 6y है, तो y कोऑर्डिनेट अगर कांस्टेंट है दैट इज 3/2, तो यहां पर देखो x स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया और x की वैल्यू +-3 आ गई, तो बस +-3 यहां पे पुट कर दिया। तो लोड नहीं लेना है हमको, है ना, डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो भी अच्छी बात है, 2 लाइन में तो आंसर आ गया यार, ठीक है। सो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू मेमोराइज इट, वो प्रैक्टिस करते करते ऐसे ही 2 बार देखोगे तो याद हो जाएगा यार, लॉजिकल है क्योंकि सारी चीज, कुछ भी रटना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके बेटा डिफरेंट फॉर्म्स पे बेस्ड क्वेश्चन हुए, तो इक्वेशन देके वो आपसे बहुत बेसिकली ये सारी चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको कंफर्टेबल रहना है बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्या, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला with its vertex at origin, axis on the y-axis and passing through 8,-4 is. तो अब यहां सवाल को कर दिया गया है चेंज। अभी तक तो हमें इक्वेशन देके पूछा जा रहा था कि यार एक्सिस बताओ, वर्टेक्स बताओ, लेटस रेक्टम बताओ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, बट अब क्या करा, अब तो इक्वेशन पूछ ली गई हमसे, लेकिन पूछ ली गई है तो बहुत अच्छे निकाल लेंगे, तो निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो किस टाइप का पैराबोला होगा, दैट्स व्हाई ऑल दीज इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो हम अभी ये नहीं बना सकते आपकी इस टाइप का पैराबोला या इस टाइप का या इस टाइप या इस टाइप, राइट, देयर कैन बी 4 फॉर्म्स। सो बिफोर, if you just read the question till here, you can't imagine which kind of parabola they are talking about. आगे हम देखते हैं, तो क्या बोला है, पहली चीज बेटा कि वर्टेक्स तो ओरिजिन पे है, वर्टेक्स कहां है, ओरिजिन पे है, इसका मतलब पैराबोला ओरिजिन से इस तरह से पास होगा, ठीक है, वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, ऐसा भी। देखो वर्टेक्स का मतलब समझो, वर्टेक्स क्या था, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस, लेकिन अगर वर्टेक्स यहां पर लेट सपोज ओरिजिन पे नहीं होता, किसी दूसरे पॉइंट पे होता, तो पैराबोला यार ऐसा आप बनाते हैं, राइट, दिस इज हाउ यू ड्रॉ पैराबोला, बट इट कैन बी समवेयर ओवर हियर एज वेल, ठीक है। तो यहां क्या हो गया बेटा, वर्टेक्स चेंज हो गया है, ठीक है, तो वर्टेक्स ओरिजिन पे है, इसका मतलब पैराबोला ऐसा ऐसा चारों तरह का बन सकता है, बट वर्टेक्स तो ओरिजिन पे है, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटीज उन्होंने खत्म कर दी है ना, ऐसी कुछ शिफ्टेड पैराबोलाज वोंट बी देयर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, शिफ्टेड पैराबोलाज वोंट बी देयर, है ना। चलिए अभी फिर मैं फिर से एक बार आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं, चलिए, तो वर्टेक्स ओरिजिन पे है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक्सिस इज ऑन द वाई एक्सिस, एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है, इसका मतलब अब 2 चीजें फिक्स हो गई हैं, है ना, अब हमें सिर्फ 2 टाइप का पैराबोला मिल रहा है, या तो वो ओपनिंग अपवर्ड होगा इस टाइप का, मैं बना ही लेता हूं ना, 2 ही टाइप है हमारे पास, सॉरी, हाँ, या तो वो इस टाइप का पैराबोला होगा बेटा, या फिर वो इस टाइप का पैराबोला, क्योंकि वर्टेक्स तो ओरिजिन है, तो इसका मतलब यहां पे ही ओरिजिन होगा, ये हमारी एक्सिस हमने फिक्स कर दिया कि वाई एक्सिस है, दैट मींस ओनली दिस 2 टाइप्स ऑफ पैराबोला कैन बी देयर, कोई तीसरा टाइप नहीं हो सकता, मतलब ओपनिंग राइटवर्ड, ओपनिंग लेफ्टवर्ड तो खत्म होगा, या ओपनिंग अपवर्ड होगा या ओपनिंग डाउनवर्ड, इस टाइप का पैराबोला होगा। अब तीसरी इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि वो पास हो रहा है 8,-4, ठीक है। तो गाइस इस केस में हम क्या करते हैं, हमें पता है कि या ये पैराबोला हो या ये पैराबोला हो, वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स टाइप का होगा, सॉरी वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का होगा, यस और नो, वो पैराबोला ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का होगा, बिकॉज द एक्सिस इज वाई एक्सिस, इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, तो एक्स का पावर यहां पर हम इवन रखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है।
अब आप बोलोगे नहीं सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay तो सिर्फ ऊपर वाला होगा, आपने कैसे बोल दिया कि ऊपर वाला है, नीचे वाला भी तो हो सकता है यार, तो उसके करस्पॉन्डिंग सिर्फ यहाँ पे एक माइनस साइन ही तो आएगा, है ना। समझो वो हमने डिफरेंट केसेस बनाए थे, ए को हमेशा पॉजिटिव लिया था, यहां पर हम बोल सकते हैं कि ए पॉजिटिव हुआ तो ऊपर वाला, नेगेटिव हुआ तो नीचे वाला, तो हम जनरल इक्वेशन ये मान सकते हैं और ए की वैल्यू पे फिर पता चल जाएगा कि वो ओपनिंग अपवर्ड है या ओपनिंग डाउनवर्ड है। सो वी कैन से दिस विल बी द इक्वेशन। नाउ इट इज गिवन दैट द पॉइंट 8, -4 is passing through it. So guys, can we satisfy 8, -4 over here? Because if this is the equation and this is the point lying on the parabola, satisfy कर दो यार। तो x का स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू y, सॉरी गलतियां बहुत हो रही हैं, आई एम मेकिंग, ये -y थोड़ी ना, ये -4 होगा ना, पॉइंट लिख लिया हमने। चलो तो 8 का स्क्वायर 64, 4 4 जा 16, तो यहां से बेटा अगर कैंसिल करोगे तो देखो बहुत इजीली a का वैल्यू आ रहा है -4, वो यहां पुट कर दोगे तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज कमिंग x स्क्वायर इक्वल टू -16y। इसका मतलब ये वाला पैराबोला नहीं हो सकता, नीचे वाला पैराबोला होगा। यस और नो? अरे यार x स्क्वायर इक्वल टू -16y आ गया, कोफिशिएंट ऑफ y नेगेटिव है, इसका मतलब पैराबोला क्या होगा सर, ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला नहीं हो सकता। आई बात समझ? तो a नेगेटिव आया तो उससे ही पता चल गया ना हमें कि हाँ ये पैराबोला होना चाहिए, ऊपर वाला नहीं। हमने माना जनरल केस था, a पॉजिटिव होता तो ऊपर वाला पैराबोला। वैसे आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे 8, -4 पॉइंट कहां आएगा बेटा, यहां कहीं आएगा, तो ऑब्वियसली ये ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला ही होना चाहिए। अगर आप ओपनिंग अपवर्ड बनाओगे तो 8, -4 उसमें आ ही नहीं सकता। तो आप स्टार्टिंग से अगर -4ay लेके चलते तो a का वैल्यू 4 आता, लेकिन इक्वेशन तो यही आती। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन सेम होगी, आप x स्क्वायर इक्वल टू 4ay से स्टार्ट करो, या -4ay, यहां माइनस माइनस कैंसिल होते हुए a इक्वल टू 4 आता, और यहां -4 इंटू 4 16y करते तो इक्वेशन तो सेम ही आनी। Okay, so this is also one of the types where you find equation from the given set of conditions to you. Clear है? चलिए बहुत ही अच्छी बात है।